So we were discussing about the stretch forming. Before this figure, you can see this figure first, so that is more clear. So now what is happening in the stretch forming means what? We are having such kind of the jaws here. Okay, so we just what we can do, we are holding or gripping the sheet, and here is the tool. Okay, so what will happen? This will be fixed. This place will be fixed. And when we apply the load using, you can say the hammer or ram, so it will take this shape. Stretching will be there. The job, this sheet will be stretched. If you see the previous diagram, a picture. Okay. So if you see in this picture, so this is the sheet, okay, and this is our what we can the ram or tool is there, and this sheet is fixed here, here, and here. So stretching will take place. So what is stretch forming? Is a metal forming process in which a piece of sheet metal is stretched and bent simultaneously over a die in order to form a large contoured part. So when the large contoured part is required, so we use this forming. So that is also not a conventional forming. Okay. Now see the process. So stretch forming is performed on a stretch press. So this is called a stretch press, in which a piece of sheet metal is secured, gripped along its edges by gripping jaws. So the end यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना gripping jaws है. So your sheet is fixed or gripped here. The gripping jaws are each attached to a carriage that is pulled by pneumatic or hydraulic force to stretch the sheet. तो ये इसको sheet को stretch करते हैं. Okay. So this will happen. And tooling used in this process is a stretch form block called a form die, which is a solid contour. So this will happen. Overall, this will happen. सिंपल प्रोसेस है कि आप एक शीट को फिक्स कर दोगे यहाँ पर और नीचे से एक प्रेशर अप्लाई करोगे तो दिस विल बी स्ट्रेच्ड. ओके, तो ये नॉर्मल फॉर्मिंग जैसा नहीं जहाँ पर एक डाई आता है पंच आता है, इट विल टेक दैट काइंड ऑफ द शेप. So we are stretching because we have to make some kind of the contour. Obviously, radius thickness will be reduced during this process. Now, what are the advantage or disadvantage of this process? So, it greatly reduce spring break. So, spring break option is less. Increase hardness by about 2%. So, it is a rough idea. So, what will happen? You are doing some kind of this training, you are applying the stress and plastic deformation is taking place. So it normally happens whenever in the forming process, this will happen. यदि आप लोग को यदि याद हो तो हम लोग जब सेकेंडरी में एक प्रोसेस पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द एनिलिंग. तो एनिलिंग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसका मीनिंग यही है कि व्हेन यू आर डूइंग द कोल्ड वर्किंग, so metal become hard and brittle. So by doing this annealing process, again we'll make it soft and ductile a little bit. So that will happen whenever you apply the plastic deformation, the hardness will increase. Hardness increase होती है. तो एक तरह का एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया. ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाता है, ये भी ध्यान रखिए. बट हार्डनेस इंक्रीज होना तो हमेशा अच्छा ही है. So it is a positive property. Hardness increase means what? You are what we can say, uh, your wear resistance has been increased. That is the plus point. Okay, easy and fast tool changeover and low cost for me. It is a low considered low cost for me. There are the simple advantages are there. So spring break का option नहीं होता, hardness increase हो जाता है. It is a fast process. Okay, मतलब आपको जस्ट क्या करना है वहाँ पे चेंज करना है, अगला अगला आप लगा दीजिए. कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है वहाँ पर, लाइक एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग और हाइड्रो फॉर्मिंग. Okay, cost is not a very much, low cost forming is there. But what is the disadvantage? इस प्रोसेस का लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या है? क्या होता है कि एक काफी बड़ा आपके पास शीट है एंड ऑन दिस शीट यू आर अप्लाइंग द लोड हियर फ्रॉम हियर एंड आप स्ट्रेच कर रहे हो उसको. ओके, so this sheet
इज नॉट यूनिफॉर्म, इसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। क्या होगा, कहीं पे तो स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा, कहीं हार्डनेस ज़्यादा कहीं कम, तो होमोजेनिटी इसमें नहीं होगी। क्योंकि स्मॉल पार्ट क्या होगा कि एक डाई वगैरह यूज़ किया तो प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म और डायमेंशंस भी आपके कंट्रोल में होते हैं, लेकिन यहाँ वो चीज़ें नहीं है, डायमेंशन उतने आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो थिकनेस होगी ना ये वेरी करेगी, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी। अब वेरिएशन ऐसा नहीं होता है, मे बी 0.01 mm का वेरिएशन हो शायद, but still it matters sometime you can avoid it depending on the requirement. So you have to maintain this thing throughout, the thickness will be same, but was में हो नहीं पाता है, that is the, you can say, the limitation or disadvantage of this process. So the middle region of the sheet are not sufficiently formed so that strain distribution in the sheet cross section is not uniform. So loss in dimensional accuracy, and the other hand to insufficient work hardening. ओके, तो वर्क हार्डनिंग जो हो रहा है वो सब जगह नहीं होगा, कुछ कुछ पार्ट में नहीं मिल पाएगा, और ये भी जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन भी जो हो रहा है वो होमोजेनियस नहीं होगा। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का एक तरह का लिमिटेशन है। Okay. So this was all about the stage forming. This is the principle. तो उसका डायग्राम होगा और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ग्रेड हाँ, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है सर? फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट क्या है वो? फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे थे, इफ यू सी दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ओके, अभी ये जितनी फॉर्मिंग हो रही है नॉर्मली दे आर नॉट फॉर द फेरस के लिए उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ये एल्यूमिनियम इस तरह की चीज़ों के लिए आती है। तो हमारा डायग्राम हम ये ले लेते हैं, डायग्राम है हमारा, दिस इज द मीन्स स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ सम कॉपर और एल्यूमिनियम अलॉय। ओके, अब नाउ वी से up till this point, this we call the elastic limit, and here this is called the plastic zone. Okay, forming means what, cold working means what, you have to apply load more than this and less than this। मतलब आप जब लोड अप्लाई करते हो इससे ज़्यादा और इससे कम, ठीक है, तब क्या होगा, यू प्लास्टिकली डिफॉर्म सम मटेरियल, मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर पाओगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इफ यू लोड लेस देन दिस देन व्हाट विल हैपन, इससे कम आपका लोड है तब क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, इलास्टिसिटी। हाँ, that is the elasticity, means what, whatever deformation it will take place, it again regain its original size and shape. So that will happen in the elastic zone, ये तो clear है। प्लास्टिक जोन का मतलब क्या है कि इट विल टेक द परमानेंट सम शेप, जैसे कि आपने कोई शीट ब्लैंक लिया, व्हेन यू अप्लाई द लोड बिटवीन दिस लिमिट, सो इट विल टेक सम शेप, बट व्हाट विल हैपन, यदि हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू आर पुटिंग सम एनर्जी हियर। ओके, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग है, व्हेन यू अप्लाई द लोड इट विल कंप्रेस्ड, एंड व्हेन यू रिलीज द लोड इट विल अगेन कम बैक टू इट्स पोजीशन, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैक होना। तो यहाँ प्लास्टिक जोन में भी क्या होता है कि वो वापस ओरिजिनल शेप में तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ शेप रीगेन करता है ना, यानी कि मतलब सपोज करो कि आपने उसको स्ट्रेन दिया, फोर्स लगाया यहाँ तक, वो जब उसको रिलीज कर दोगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट गेट द ओरिजिनल शेप बट इट विल कम बैक ए लिटिल बिट, तो दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग बैक, उसका स्प्रिंग बैक होना बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, होने दो ना, आपका जो भी सपोज जो भी शेप आपको लेना है वो तो आपने बना लिया, और अब आपके डायमेंशंस आपको समझ में नहीं आएंगे ना, आप तो ये डायमेंशन चाहते थे, आपने जब से लोड रिलीज किया तो डायमेंशंस तो कम हो गए फिर आपको हमारे, तो एक तो डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं रही उस चीज के अंदर। यदि स्प्रिंग बैक होता है तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर या तो फिर आप कुछ ऐसे, जैसे कास्टिंग में हम करते हैं कि बड़े साइज का पैटर्न लेते हैं, तो कुछ आपको ये डायमेंशन चाहिए तो आप इतना स्ट्रेच करो,
तो फिर ये रिड्यूस होकर यहाँ पे जाएगा। बट इन दिस केस यू विल नॉट गेट द एक्यूरेसी। तो फॉर्मिंग का मतलब ही यही है, जब फॉर्मिंग का एडवांटेज हम क्या बताते हैं, कास्टिंग से कंपेयर करोगे तो फॉर्मिंग मीन्स व्हाट, द डायमेंशनल एक्यूरेसी, सरफेस एक्यूरेसी, यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। फिर आपको कम ज्यादा नहीं करना, भी ऐसा आपने किया तो हो सकता है कि यू टू यूज सम मशीनिंग प्रोसेस। एक्चुअली फॉर्मिंग के टूल तो ऐसे होते हैं, मतलब जो चीजें की वो मशीनिंग का स्कोप नहीं है वहां पर ज्यादा। नॉर्मली यू विल गेट द ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्ट देयर। थोड़ा बहुत सरफेस फिनिश वगैरह कुछ किया जाए तो किया जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर द फाइनल प्रोडक्ट। सो ये जो स्प्रिंग बेक होता है, मतलब आपने उसको स्ट्रेच किया, प्लास्टिकली डिफॉर्म तो हुआ, बट जहां आप उसको रिलीज करोगे लोड को, इट विल लिटिल बिट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि वो जो उसके अंदर आपने पोटेंशियल एनर्जी दी है वो वापस उसको कन्वर्ट करेगी वर्क के अंदर। तो जस्ट स्प्रिंग में होता है सेम वैसे, तो इसीलिए उसको स्प्रिंग बेक कहा जाता है। और इन द फॉर्मिंग दिस फिनोमिना इज नॉट गुड, मीन्स वी डोंट वांट स्प्रिंग बेक इज देयर। तो स्पेशली जब हम HERA पढ़ रहे थे, हम बार बार हम बोलते थे कि HERA प्रोसेस का एडवांटेज ये होता है कि उसमें स्प्रिंग बेक नहीं होता है। मतलब जो चीज आपने एक बार उसको ग्रिप करके आपने स्ट्रेच कर दिया चीज को, उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, तो स्प्रिंग बेक अब यहाँ पे लिखा है ग्रेटली रिड्यूस, मतलब जीरो तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। बट इफ इट इज निग्लिजिबल, वेरी लेस, तो मीन्स आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्प्रिंग बेक यदि होगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी भी हो सकता है कि मटेरियल के कौन सा मटेरियल ज़्यादा स्प्रिंग बेक करता है, कौन सा कम करता है, इट इज़ ऑल्सो मटेरियल प्रॉपर्टी, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्प्रिंग बेक। ओके, तो जैसे नॉर्मल जैसे आप डे टू डे लाइफ में तो हम देखते हैं कि जो रबर बैंड होता है, आपने किसी बॉक्स को उसको बंद किया, जैसे रबर बैंड वहां से निकालोगे वो तो अपना ओरिजिनल शेप में आता है। तो ये तो इलास्टिसिटी हुई, इट विल गेन द ओरिजिनल शेप, बट डिफॉर्म हुआ है, बट कम बैक आता है थोड़ा सा, तो दैट इज द स्प्रिंग बैक इफेक्ट। तो ये नॉर्मल फॉर्मिंग में ज्यादा देखा जाता है, और जो हम स्पेशल फॉर्मिंग पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा कम है। HRF में तो बहुत ही कम है बिल्कुल, क्योंकि वो इतना सडन होता है कि उसको मौका नहीं मिलता है वापस आने के लिए। मतलब जब ये थोड़ा स्लोली स्लोली जब चीजें होती है ना, सो देन व्हेन यू रिड्यूस द लोड इट ट्राई टू कम बैक। सो दैट इज द थिंग। अब ये ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स। एनी अदर पॉइंट कुछ आपको और कुछ पूछना है इसमें? ये हार्डनेस क्लियर है, ये हार्डनेस कैसे, हार्ड कैसे होता है? इट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। तो जो हार्डनिंग है स्ट्रेन हार्डनिंग होती है उसके अंदर। वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो हार्डनिंग है यूनिफॉर्म नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि कहीं कहीं ये हार्ड वो होगा नहीं। Okay, now we move to the next topic is the incremental sheet metal forming. But before we'll go to this thing, before you see this picture, ठीक है, ओके। अब इस पिक्चर में क्या शो किया हुआ है यहाँ पर, ये आपका ब्लैंक है, ये ब्लैंक को आपने जो भी फिक्स किया हुआ है डाई के अंदर, दिस इज द शीट एंड दिस इज योर पंच, ओके। अब now what will happen, normally in the forming, okay, एक तो फॉर्मिंग क्या होती है कि जैसे हैमर आता है और उसको स्ट्राइक करता है, ठीक है। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, मतलब व्हील वगैरह के, कि एक रेड कलर का एकदम ब्लॉक आया और उसके ऊपर हैमर उसको प्रेस कर रहा है, मतलब। तो एक तो ये फॉर्मिंग होती है, यू विल स्ट्राइक समथिंग लाइक दिस, you have a job here like this, maybe heated or cold, and some hammer is there, और hammer इसको strike करता है, so it will change its shape. That is the one thing. Second thing, we are having a die, हमारे पास die है, ये blank है, and we apply a punch, यहाँ पे हमने punch से apply किया, so it will get this shape, ये die ने shape ले लिया, okay. So this will happen means either in the one stroke or maybe some 4-5 strokes means, ठीक है। कभी कभी ये जैसी चीज है तो एक बार में नहीं हुई, कई बार उसको से स्ट्राइक करना पड़ेगा, पर नॉर्मली ये जो प्रोसेस है नॉर्मली इट हैपेंस इन द वन स्ट्रोक, ओके।
तो 1 स्ट्रोक में ये चीज हो जाएगी। बट इंक्रीमेंटल में क्या होगा, ये एक बार में नहीं होगा, मतलब स्लोली 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 दिस टूल विल गिव दिस शेप। मतलब यहाँ से फिर धीरे 1 पास, 2 पास, 3 पास, जैसे आप टर्निंग करते हो लेथ के ऊपर, व्हेन यू टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ योर शाफ्ट, जो भी आपको बार दिया हुआ है, तो आप एक ही बार में कोई 5 mm का कट नहीं लगाते, आप क्या करते हो, आधा mm कट, आधा mm कट, आधा mm कट, slowly slowly you will reduce the diameter, and then you can in some 8 and 10 pass you convert into the, you reduce its diameter to 4-5 mm। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही कहानी है, ये जो टूल होगा वो एक बार में काम नहीं करेगा, ये स्लोली स्लोली इट विल वर्क एंड गिव द शेप। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल फॉर्मिंग। तो इसके एक अच्छा वीडियो भी इसी के प्रोसेस के ऊपर, जो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Okay, so now you see this video. So now in this video, okay, so this is the tool, ये हमारा टूल है, और ये जो भी हमारा पार्ट है यहाँ पर, ये पूरा ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कुछ, ये जैसे एक लुब्रिकेंट है, क्योंकि फॉर्मिंग प्रोसेस में लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, तो उसका लिए एक डिफरेंट टॉपिक है कि क्यों किया, इसलिए यूज किया था, बट दिस इज जस्ट अ लुब्रिकेंट। ये पूरा का पूरा ब्लैंक है यहाँ पर। ओके, नाउ सी दिस प्रोसेस। ओके, इसमें एक चीज और भी है कि अब ये नॉर्मली जो प्रोसेस होता है ना, ये एक तरह का ऑटोमेटेड प्रोसेस है, मतलब ये ह्यूमन मैनुअली बहुत पॉसिबल नहीं है। तो जो आपने पूरा जो भी इसका इंक्रीमेंट्स वगैरह है ऑलरेडी फीड किए हुए। ओके, अब इट इज डूइंग इन एवरी साइकिल, ये प्लास्टिकली इसको डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है। So that is called the incremental. In every cycle you are plastically deform। और ये जो ये भी दो तरह से होता है, तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल पॉइंट इंक्रीमेंटल फॉर्मिंग, ठीक है। सो दे आर प्रोवाइडिंग दिस लुब्रिकेशन। ठीक है, डेफिनेटली नीचे एक डाई है, तो वो शेप उसको मिलते जा रहा है। और ये जो भी इसका साइकिल है एक्स वाई एक्सेस, इट इज कंट्रोल्ड लाइक ए सीएनसी मशीन। ये सीएनसी मशीन पे वर्क हो रहा है। ओके, अब नो हमने कई बार, ये तो काफ़ी सिंपल ऑपरेशन है, कई बार हमने ये 1 स्ट्रोक जो नॉर्मल फॉर्मिंग से भी चीज़ हो सकती है, ब्लैंक और डाई रखा है, पंच आएगा, सो इन 1 स्ट्रोक दिस कैन हैपन, बट हियर द सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंक्रीमेंटल वे।
So it is called the incremental single point incremental forming. अदर टाइप जो होता है वो डबल साइडेड, मतलब डबल साइड में क्या होगा, दोनों तरफ टूल होंगे. Okay, so here this process complete. This is cone kind of the shape यहाँ पे हमारा बन गया. So this is the thing. So ओके, सो यही अभी आपको यहाँ पे डायग्राम समझ में आ जाए क्या हो रहा है. वही चीज का डायग्राम था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हम 2D वे में देख रहे हैं. तो ये जो पंच ऐसे ऐसे टर्न करेगा और इसको शेप देते जाएगा. तो ये एक साइकिल में इसने इतना डिफॉर्म किया, काफी सारे साइकिल्स होंगे, फाइनली यू गेट दिस शेप. दिस इज कॉल्ड, दिस इज द इंक्रीमेंटल फॉर्मिंग. क्या होता है हम देखते हैं इसके थ्योरेटिकल वे में. Incremental sheet metal forming is a sheet metal forming technique where a sheet is formed into the final workpiece by a series of small incremental deformation. So we will not have the one or two deformation, one or two stroke. Very small deformation will take place. The sheet is formed by a round tipped tool, typically 5 to 20 mm in the diameter. That we have seen that tool. एक राउंड टिप टूल होगा, तो टूल विच कैन बी अटैच्ड टू ए CNC मशीन. तो एज आई से दैट प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द नॉर्मली CNC मशीन. तो उसको मैनुअली हम नहीं करते. ठीक है. A robot arm or similar indents into the sheet about 1 mm and follows a control. Obviously you have to do the programming. उसका जो भी पार्ट प्रोग्रामिंग आपको लिखना पड़ेगा कि हर साइकिल में कितना डीप जा रहा है और कितना सर्कल वो ले रहा है. If then indents further and draws the next contour for the part into the sheet and continues to do this unit, the full part is formed. तो पूरा पार्ट जब तक बन नहीं आता वो इंक्रीमेंट करते रहेगा. अब ना ये इसका प्रिंसिपल हो गया, जिससे हमने बोलता था कि उसके दो टाइप्स हैं. वन टाइप इज द सिंगल पॉइंट इंक्रीमेंटल फॉर्मिंग, SPIF. तो जो हमने वीडियो देखा था या जो पिक्चर है वो SPIF का ही था. डबल साइडेड इंक्रीमेंटल फॉर्मिंग भी होता है, मीन्स टूल बहुत सारे टूल्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स वगैरह फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं. अब इसके एडवांटेज क्या है? द प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड entirely by the CNC processes. No die is required as it is in traditional sheet metal forming. ट्रेडिशनल शीट मेटल फॉर्मिंग की तरह डाई की जरूरत नहीं है. CNC मशीन उसको प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है. Higher production run, the time and cost to produce a die is absorbed by the higher per piece speed and lower per piece cost. So high production run, disadvantage क्या है? There is a loss of accuracy with the ISF process. So एक्यूरेसी इसमें हमको शायद उतना नहीं मिलता है जो एक पंच को डाई होगा तो डाई का शेप लेगा. यहाँ पे हमें एक्यूरेसी का इश्यूज आ सकते हैं. So this is all about all these processes. Okay. So आज हमने दो processes discuss किए. So one is this incremental type and one is the stage forming. Okay. Okay. फिर अब एक लास्ट टॉपिक इसमें जो बचा है, तो नेक्स्ट टर्न जो अभी नेक्स्ट लेक्चर होता है, आई थिंक नेक्स्ट वीक में तो आपका एग्जाम रहेगा. तो ये लास्ट टॉपिक यही बचा है, माइक्रो फॉर्मिंग और लेजर बेंडिंग. ये दो टॉपिक ही बचे हैं अभी इसमें. तो
इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ द फॉर्मिंग है, माइक्रो फॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है, हम कुछ स्मॉल पार्ट बनाने वाले। लेजर बेंडिंग मीन्स, अब इसमें तो लेजर है मीन्स, लेजर में नाम आते से मतलब इट इज ए वेरी हाईली टेक्निकल थिंग, मतलब लेजर को प्रोड्यूस करना, कंट्रोल करना, इट इज डेंजरस भी होता है कभी कभी। सो बट ये लेजर बेंडिंग है, मतलब आपको बहुत ही कुछ, आप बोलते हैं ना कि बहुत एक्यूरेट चीज चाहिए तभी आप लेजर की तरफ जाते हो। सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay.